خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دن اس قوم کے ساتھ سے شفقت کا ہاتھ اٹھے ہوئے ایک وقت بیت گیا۔ آج ہم سب لوگ یہاں پہ انہیں کو یاد کرنے کے لیے، ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ان کی خدمات اور سمیدہ ثواب صورت فاتحہ ہمارے ناس یا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس روز کو ہم یوں ہی ہر سال منائیں گے، اس روز کو ہم یوں ہی ہر سال منائیں گے، جو درس دیا تم نے ہرگز نہیں بھولیں گے، اور علم ہنر کے بہت شکریہ سبھی کا۔ مسعود چودھری صاحب کو میں تیری رضا حاصل کرنے کے واسطے یا پیارا حبیب کریم رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی واسطے اہل ایمان بالخصوص چودھری مسعود صاحب کی مغفرت اور بخشش واسطے عنایت بینات درود السلام نبی مقدس بارگاہ میں اس کو نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس دربار میں شکر فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کے سب تمام بھی احترام و نظام کیا تم نے ہرگز نہیں بھولیں گے، اور علم ہنر کے ہم آکاش کو چھو لیں گے، بابائے قوم تیری راہوں کو پھولوں سے سجائیں گے، اس روز کو ہم یوں ہی ہر سال منائیں گے، بابائے قوم تیری راہوں کو پھولوں سے وہ درد اٹھا تھا جو جب قوم کی راہوں سے، ہاں علم بڑا تھا تب کھیتی کی راہوں سے، بابائے قوم تیری راہوں کو پھولوں سے سجا۔ آج کے دن کا انویٹیشن جب مجھے کے شاہ محمد جی نے دیا، ڈاکٹر مسعود چودھری محکمہ پولیس میں باحیثیت پی ایچ ڈی بھرتی ہوئے، جہاں سے وہ 37 سال کی شاندار خدمات کے بعد 2004 میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 2004 سے 2010 کے دوران وہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں پہلے سی او نامزد ہوئے اور بعد میں وائس چانسلر کے طور پر تعینات ہوئے۔ 2010 میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے سبکدوش ہونے والے وہ پہلے وائس چانسلر تھے۔ ڈاکٹر مسعود چودھری نے اپنی 78 سالہ زندگی کے دوران بہت سے ادارے تعمیر کیے، جس میں گلزن پیس چیریٹیبل ٹرسٹ جموں، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری اور پولیس اکیڈمی بدھور کی جدید کاری کا کام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ گلزن پیس ٹرسٹ کے چیئرمین جناب شاہ محمد چودھری، جنرل سیکرٹری جناب شریف چوہان اور معزز ٹرسٹیوں کی قیادت میں مسعود چودھری صاحب کے اس مشن کو پورے جان فشانی سے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پچھلے ایک سال میں درجنوں تقاریب، لیکن ان کی زندگی میں علی گڑھ یونیورسٹی کا ایسا اثر تھا، ایسی تہذیب اور ایسی شائستگی تھی اور وہ جگہ پانے کی مستحق بھی تھی۔
वो अल्लाह की यानी बारगाह में यानी उसकी बहुत सी बातें जो हैं वो दरबदर की जाती हैं और फिर वाक़या वो हमारे यानी पैगम्बर जो हैं उनकी बता साहब को लिखने पढ़ने वाले और मेहनती लोग बहुत पसंद थे, तो इसलिए हम उनको यहाँ मौका देते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। हाल में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। औरों का है बयान और मेरा बयान और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। आज हम यहाँ उन्होंने उधर भी कोई कमी नहीं रखी, अपने प्रोफेशनल में भी कोई कमी नहीं रखी, और साथ साथ अपनी कम्युनिटी के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, पसमानदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो उन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ है। 2 बातें मैं उनकी कहूंगा आपको, जो कोई काम उन्होंने देखा और अपनी सोचना से जो सुनने तक कुछ करता था किसकी काबिल थी, क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई, सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। पहली बार उनसे जब मुलाकात हुई, मैं उनका शागिर्द रहा हूं, एकेडमी में 1 साल तक उन्होंने हमें तरबियत दी। उनकी वो बातें कोशिश की है कि पिछले 24 सालों में पुलिस की नौकरी में या अपनी जिंदगी में उन पे अमल किया जाए। वो हमेशा कहते थे कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है कि आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन आपको बोलना तब आएगा जब आपको लिखना आएगा, और लिखना तब आएगा जब आपको पढ़ना आपने खूब पढ़ा होगा। सिर्फ तालीम एक ऐसी चीज है जिससे किसी कौम की तकदीर बदल सकती है, और फर्ज है कि हम उन पे एक नजर रखें। वो सिर्फ पुलिस वाले नहीं रख सकते, साथ से ऊपर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं इजाजत चाहूंगा कि इस खाक होके भी महकते हैं गुलाबों की तरह, चंद चेहरे जो मुकद्दस हैं किताबों की तरह। तो वो मुकद्दस हस्ती जो हम सबको छोड़ के चले गई, वो काफी अचानक से मैं चला गया तो वो मैंने कहा शायद उनको कैंसर बीमारी की वजह से दर्द हो रहा था। मैंने कहा रो रहे, कहते हैं मेरी गरीब कौम का क्या होगा। मेरा एक विजन था जो मैं लेके चला, लेकिन डर है कि इसके बाद कैरी कोई कर पाएगा या नहीं। बनाना आसान है, लेकिन आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है आपकी। और साहब को उनकी पहली बरसी पे खराज अकीदत पेश करने के लिए जैसा भी कहता हूँ, हम सबका मसूद साहब के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है, हम सबका एक तल्लक रहा है। हम सब किसी न किसी पहलू पे मसूद साहब को याद करते हैं। किसी के ज़हन में भी ये बात नहीं, किसी ने उनसे जब पूछा कि क्यों मसूद चौधरी साहब होते कि पुलिस अफसर थे, यहाँ कोई एकेडमिशियन होना चाहिए था, उन्हें कहा इस शख्स में वो काबिलियत है, इस शख्स में वो अहलियत है कि ये इस ऐसे जंगल में यूनिवर्सिटी कायम कर सकता है। और वो अदारा जो बना, बशीर अहमद खटाना साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और अब मसूद साहब के तई इनके क्या जज्बात हैं, 1 मिनट में। मगर उसकी शख्सियत जो थी, उसका विजन जो था, मुझे कई बार मजाक होता था। तो मैं उनको कहता था कि ख्वाब बड़े हसीन होते हैं, कहता पूरे होंगे आप देखिएगा। 1991 में कुछ दिन प्राइमरी स्कूल है, कुर्सियां तो थी ईद पे बैठ के हमने मीटिंग की और ट्रस्ट को बनाया। ये था तो अपनी जगह, इसलिए उनका नाम से लिया मसूद साहब।
वक्त का कहते निगाह मिलन सुगम दिन नवाज जा पुरसोस, यही है रास्ते सफर मेरे का बाकी नहीं। मुझे लगता है कि शायद मैं ये जो शेर लिखा ये कुरान पाक की उस मुख्तसर आयत के हवाले से, बाकी हर गल कुछ पहली खुश होके एक उजरन से हालात में खुश मेरे ताज भाई साहब, क्योंकि जब मेरी इनसे लड़ाई होती थी, जिद करता था, मैं गुस्ताखियां करता था, आपको भी मुबारक करूंगा कि आपने कभी दिल में वो बात नहीं रखी, लेकिन मुझे डर था कि अभी मसूद साहब का फोन आएगा बस, तो फोन में बंद कर देता था। तो फिर चार जो मुझसे पहुंचती थी वो मसूद साहब से पहुंचती थी। तो आपने भी भाई जैसा शुरू किया, बहुत मेहरबानी। तो कहते हैं कि बाकी हर गल कुछ मेरे खुश होके एक उजड़न में हालात में कुछ किवें आए किवें विछड़ गए किवें हुई आखिरी मुलाकात। तू आप शाकिर सेना है, तू आप शाकिर सेना है, मेरा चेहरा पर हालात में कुछ। शुक्रिया। वक्त खासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हर रात की सुबह होती है और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं, अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे, उनको ये ख्याल था जहन में कि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि तब मुगल रोड भी नहीं था। जो वहाँ के बच्चे थे तालीम के लिए यहाँ उनको जम्मू आना पड़ता था, यहाँ आते आते एक दिन और कश्मीर पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग जाते थे। तो मैंने सुना कि वो यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर बहुत शोर है हमारी जमात में, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फैसला किया है, एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर है चौधरी मसूद साहब, उनको बनाने का। तो मैंने कहा ये शोर क्या है? कोई कहा नहीं जी उसकी एफिलिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, किसी ने कुछ और कहा। और मुफ्ती साहब, आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करते थे तो पीछे नहीं हटते थे। तो मुफ्ती जैसे ताज साहब ने कहा कि कई मुफ्ती साहब के अपने कलीग्स अपनी जमात से ये कहने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मुझे आज खुशी है कि जब हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, जो उनका अपना नजरिया था, जैसा जावेद राना साहब ने भी कहा कि उन्होंने सही इंसान का इंतखाब किया। वो कहते हैं कि कोयले में से हीरा निकालना सब नहीं निकाल सकते, उसमें भी बहुत नजर चाहिए होती है आपको। और एक बयाबान, एक जंगल समझ लीजिए, एक पथरीली जमीन पे जिस तरह मसूद चौधरी साहब ने बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, मैं समझती हूँ वही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता। इतना ही नहीं कि मतलब जब मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ हर जगह से बच्चे आए हुए, तो पता चलता है कि मुफ्ती साहब का भी बैकग्राउंड था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जबकि वो 59 में वहाँ से वापस आए, और मसूद साहब का भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और मैं समझती हूँ वो जो गंगा जमुना जो हम यहाँ भी देखते हैं आज, जो बहुत सारे ऑफिसर हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, पहाड़ी भी हैं, गुजर भी हैं, जो उस वक्त मुल्क में गंगा जमुना तहजीब होती थी जब मुफ्ती साहब वहाँ पढ़ते थे, जो लेके वो कश्मीर आए, और कश्मीर में भी उसी नज़र से, जम्मू कश्मीर में उनका नज़रिया था, सेकुलर नज़रिया रहा। वही मैं देखती हूँ चौधरी साहब का भी वही गंगा जमुना तहजीब जो वहाँ से लेके आए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, गांधी के उस मुल्क से, उसी को यहाँ भी उन्होंने कायम रखा हुआ है। और यहाँ जो चीफ ट्रस्टी साहब है, उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ
विमेन के लिए ट्राइबल कॉलेज बनना चाहिए। मुझे मालूम नहीं मेरे वक्त में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। छोटे मोटे काम हमने किए थे, ये भी कर सकते थे। बहुत अच्छा है, हमारी बच्चियों को तालीम चाहिए। मुफ्ती साहब का ये मानना था, जैसे कि चौधरी साहब भी समझते थे इस बात को, कि अगर आपने किसी भी कौम को ऊपर उठाना है, पसमानदा कौम को उठाना है, तो एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर, यानी ये बराबर करता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, जब आप उसको एजुकेशन देते हैं तो बराबरी की उस पे आ जाता है। उसमें फिर कोई फर्क नहीं रहता है कि कोई वो बहुत ही चौकीदार का बच्चा है, माली का बच्चा है या मिनिस्टर का बच्चा, अगर आप उसको तालीम दे। तो यही वजह है कि उन्होंने अपने वक्त में तालीम पे बहुत जोर दिया और 2015 में उन्होंने यहाँ जम्मू में इसी मसूद साहब से कह के एक तो यहाँ जो नर्सिंग कॉलेज जम्मू में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चियाँ आगे पढ़े चले और अच्छा काम करे। तो मसूद साहब के बारे में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि एक टीचर का लड़का पुलिस का काम किया, मगर आज अगर उनको हम याद करते हैं तो एज एन एकेडमिशियन याद करते हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी उनको जो है शायद भूलेगी नहीं, जो नस्लें आने वाली हैं हमारी, जिनके लिए इतना कुछ काम किया है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमीद साहब की और बाकियों की, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं अपने जो है दिल की गहराइयों से चौधरी मसूद साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ और चाहती हूँ अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने यहाँ अपने पसमानदा कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, राजौरी पुंछ के लिए, अपनी कौम के लिए और लोगों के लिए जो उन्होंने खिदमत यहाँ अंजाम दी, अल्लाह ताला उनको वहाँ उसका बहुत ही अच्छा जो है उनको वहाँ पर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और उनकी ये जो इबादत है, ये इबादत है जो यहाँ उन्होंने की इबादत है, इस इबादत को आगे ले जाने का हम सब लोगों को, खासकर यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, उनको इसको आगे ले जाने की अल्लाह ताला तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शख्सियात ने अपने अपने लेख लिखे हैं, उन पर अपने जज्बात का इजहार किया है, किसी ने अखबार में, किसी ने सोशल मीडिया में, किसी ने मैगजीन में। उन सबका यहाँ पर मैं उनका नाम लूँगा, उनका हम शुक्रगुजार हैं फैमिली की तरफ से भी और ट्रस्ट की तरफ से भी। सईद नाइब अंजामी साहब, तालब हुसैन रफाकी साहब, जफर चौधरी साहब, मोहम्मद यूसुफ टैंक साहब, मोहम्मद रसूल कुरैशी साहब, खालिद हुसैन साहब, मुसद्दक हुसैन साहब, जो अभी यहाँ तशरीफ रखते हैं।